Hello my dear friends, welcome to my channel My Target 100%. I think all of you must have seen my last videos. Okay, anyway, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्विटल पॉइंट और एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। उससे पहले हमको ये बताना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटल लाइन पढ़े, तो उसमें जैसे बनाए थे पूरा उस तरह है। ओके, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में चार्ज क्या होगा? तो चार्ज ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? चार्ज ओबे द क्वांटाइजेशन, चार्ज इज एडिटिव नेचर, सो चार्ज कैन बी एडेड। ओके, दे आर स्केलर। क्वेश्चन इज ई प्रोपोर्शनल क्या 1 by r स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आप पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, E इज इक्वल टू, ये E इज इक्वल टू आप क्या बोले थे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, देन V प्रोपोर्शनल 1 by r, here E प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर। सो मोर डिस्टेंस लेस पोटेंशियल एंड वाइस वर्सा। ओके, but now question is, what is electric potential? Actually, our motto or aim is to derive electric potential on axial point and equatorial point, general points. But one by one we have to discuss. First, we should know about what is the meaning of electric potential. Actually, electric potential means the degree of electric potential. Electrification is known as electric potential. Okay, so electric potential means the amount of work done or amount of energy to bring a unit positive charge from one point to another against the electrostatic forces. If it is a potential difference, it is particular definition of this one. What I am repeating again, it is the amount of work done to bring a or to bringing a unit positive charge or moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic forces. It is the potential difference. But if we just change this one, amount of work done to bring a unit positive charge from infinite to that point against the electrostatic forces, so it is known as electric potential. So potential difference means between 2 points, and potential means you are bringing the charge from infinite to that point. Okay, so we have to use this one. Now anyway, our topic is electric potential. Electric potential due to point charge, this one you have to apply in this case. So topic is electric potential at an axial point, okay, due to electric dipole. वेरी इजी। क्यों? आप पहला चैप्टर में पढ़े थे, तो इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन इज आप इसको कैसे यूज करते हो, अप्लाई करते हो। कम टू पॉइंट्स। पहले क्या करना है, देखो जो जितना जरूरत है उसको फोकस करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो, इसका नाम दे दो ए बी। ए में माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट में, बी में प्लस क्यू चार्ज। ओके, यहां से डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको मालूम है, वो 2 है, 2a। सपोज सेंटर O, तो यहां से यहां कितना हो गया A, तो यहां से यहां कितना हो गया A। आज O इज द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ क्वेश्चन इज, लेट P बी द पॉइंट where we have to calculate the electric potential due to minus q charge plus q charge. So it is suppose P. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, डायरेक्शन था, आप U1 U2 ले रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ओके, अभी क्या करना है, इस चार्ज का चलते यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इस चार्ज का चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, और दोनों को जोड़ देना। ओके, सो हाउ कैन वी राइट द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a. P be any point on the electric dipole where we have to calculate the electric dipole due to both the charges. O is the midpoint of the electric dipole. Okay, you will get everything from my website. That is notes. I am giving a link. So if you click the link, you will get the
notes from my website. Okay, don't worry for notes. Then come to point, complete notes for every chapter. Okay, then come to point here, mathematical expression. Mathematical expression. Okay, so what you will do, at least you write this much. Suppose from figure AB is equal to how much today? 2A. So O is the midpoint, so OA is equal to OB is equal to how much? A. So OP is equal to how much? So from O to P, let it is R. Clear? OP is equal to R. How much you will write that I have already told. Come to point. Electric potential, you will write electric potential at P due to minus Q at A. Suppose it is V1 is equal to how much? Minus, you have to apply electric potential due to point charge. एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, यहाँ पोटेंशियल कितना है इस चार्ज का चलते, तो आपको क्या करना है, के क्यू बाय एपी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी इसको हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू, एपी मीन्स दिस मच, सो ओपी प्लस ओए इज इक्वल टू एपी. ओके, सो ओपी प्लस ओए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए, equation 1. Clearly, any problem? Okay. So similarly, electric potential at P due to plus Q at B, V2 is equal to plus KQ by BP. That is, you can write V2 is equal to plus KQ by R minus A, equation 2. Clear? So now, so can I erase? Okay, it is mathematical expression. So come to point, net potential at P due to minus Q and plus Q charge. Okay, how much? V is equal to V1 plus V2. Okay, can I erase this one? You have written? Okay, thank you for your better understanding, because it is very easy. You just write the value V1 minus KQ by it is R plus A. V2 is KQ by R minus A. Clear? So can you write this one? KQ by R minus A minus KQ by R plus A. We can write this one. Okay. No need to give this one bracket. Okay. No need. But if you will give, there is no problem. But here is LCM is how much? R square minus A square. Okay, can you take common? KQ. Okay, if you take the common, how much it will get? R square. It is directly I am doing R square minus A square. Okay, इसको हम मिटा देते हैं, एक स्टेप क्यों छोड़ेंगे, आपको दिक्कत होगा. सो यहाँ क्या करेंगे ना, KQ कॉमन ले लिए, तो 1 बाय R माइनस A माइनस K 1 बाय R प्लस A, इतना रहा. क्लियर? अभी क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. यहाँ कॉमन कितना, के क्यू, तो यहाँ कितना करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिला, आर प्लस ए. यहाँ माइनस था, माइनस दी, इसको इसमें डिवाइड करेंगे कितना मिला, आर माइनस ए. ओके, सो कम टू पॉइंट दिस वन. नाउ इफ यू विल ओपन, हाउ मच यू विल गेट, आर प्लस ए minus R plus A. Okay, so by R square minus A square. Come to point. Now I am going to this side. Okay, so V is equal to KQ. R minus R cancel हो गया, यहाँ कितना रहा, into
2a it is by r square minus a square. Okay, so V is equal to K. If you give the bracket this one, this is how much? P. P is the electric dipole moment. P is the product of charge and distance separation. So you will write this one Kp by r square minus a square. This is the electric potential and axial points. This is the value of, you can give the equation 3. Equation 3 represents the electric potential at an axial point due to electric dipole. Okay, now one special case is there. One special case is there means if dipole is short. If dipole is short for a short electric dipole, so how much you will get? R greater than A or R square greater than A square. So equation 3 becomes V axial is equal to Kp by R square. Understand? This is the case of electric potential at an axial point due to electric dipole. This much for axial line. Okay. Then come to points. Can I erase? Okay. Come to points. Equatorial points. Electric potential. Okay. जो बच्चे नहीं लिखे आप लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at an equatorial point due to electric dipole. ओके, हम पहले बताए हैं वो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वेटोरियल लाइन में बना रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी. ओके, कम टू पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिख दिए, इसको मिटा देता हूं. ओके, कम टू पॉइंट. अगर आपका लिखा कंप्लीट हो गया, जिसका जो डाउट है आप पूछ सकते हो, राइट सकते हो कमेंट बॉक्स में. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट में निकालना है. ओके ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इंपोर्टेंट. सो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो. ओके, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों का नाम दे दो ए बी. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना ना 2a, और मिड पॉइंट हो गया कितना O. तो यहां से यहां कितना हुआ A. रिपीटिंग द सेम. आप अगर रिपीट करते रहे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. एक नहीं समझा दूसरा समझेंगे, तीसरा नहीं समझा तीसरा समझेंगे. तो प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो. ओके, अभी क्या है, लेट P बी द पॉइंट्स. यहां से ए लाइन से एक लाइन ड्रॉ करो. अभी ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया. ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट चैप्टर में समझे हैं, वो वीडियो देख लेना आराम से. अभी लेट इट इज द P. इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां कितना है, इस चार्ज का चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ज्वाइन कर दो. कर दी. ओके, अगर ये हुआ, ये कितना हो गया, सपोज ये R हुआ, तो ये राइट हैंड ट्रायंगल हो गया. अगर ये राइट हैंड ट्रायंगल होता है, थीटा होता है, इसका वैल्यू कितना हो गया. ओके, ये परपेंडिकुलर, ये बेस H हुआ, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हुआ. अगर लेते हैं AOP एक राइट हैंड ट्रायंगल हुआ, POB एक राइट हैंड ट्रायंगल हुआ. ओके, तो इस साइड जितना हुआ इस साइड उतना हुआ. क्लियर, कम टू पॉइंट. सो अभी क्या करना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक ना. ओके, कम टू पॉइंट. सिमिलरली यू विल राइट, consider an electric dipole that consists of equal and opposite charges separated by distance this much. Okay, and let P be the point where we have to calculate electric potential due to this charge on an equatorial point. Only this one is OP is the perpendicular to AB. OP perpendicular to AB. Okay, and R is the distance from O. Okay, so OP is equal to R. Other things आप जैसे लिखाए थे वो लिख देना. और AP जितना कितना है इतना हुआ. पाइथागोरस थ्योरम हिसाब से आप इतना मिला. ओके ओके, कम टू पॉइंट्स. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q at
ए, सपोज V1 कितना होगा माइनस के क्यू बाय आर, आर इज हाउ मच दिस वन एपी, यहाँ एपी लिखते हो तो यहाँ कितना हो गया माइनस के क्यू बाय एपी इज हाउ मच आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वहां आर स्क्वायर था तो इसीलिए स्क्वायर रूट हटा देते थे, यहाँ आर है इतना रहा, सो दिस वन इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओके बेटे एट पी ड्यू टू प्लस क्यू एट बी इज इक्वल टू हाउ मच V2 इज इक्वल टू के क्यू बाय बीपी इज इक्वल टू हाउ मच प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस वैल्यू ओके। के क्यू बीपी लेना, यहां लिए थे एपी ओके। नाउ नेट पोटेंशियल एट पी, सपोज हम लोग V लेंगे तो दोनों क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ दो। V1 कितना माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां लिख देना प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये जितना वो उतना एंड इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। सो V इक्विटोरियल इज इक्वल टू 0। क्लियर? So up to this much clear understand? So this is about the electric potential at an equatorial point due to electric dipole. Now question is we have to calculate electric potential at any general point due to electric dipole. Can I erase? Okay. So now question is it is very important on comparison with the equatorial line and axial line. Electric potential at any general point due to electric dipole. Okay, electric dipole. ओके सो पहले ये तो जानते हो, ये भी जानते हो तो ड्रॉ कर दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले ले लेना, यहाँ कितना है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ कितना है प्लस क्यू चार्ज, नाम दे दो क्लियर। ये कॉमन चीज है 2a, ये सेंटर OA, तो यहां से कितना हुआ A, यहां से कितना हुआ A। ओके लेट दिस इज द पॉइंट ओके, एनी पॉइंट यू टेक this point P where we have to calculate the electric potential due to this charge. So join कर देते हैं, suppose this is the line, ये पॉइंट हुआ, ये P हुआ, यहाँ से डिस्टेंस R1, B पॉइंट से ऐसे जोड़ते हैं सपोज ओके, यहाँ जोड़े सपोज दिस वन, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ये R2 हुआ ओके, AP हो गया R1। अभी O और P ये कितना हुआ, सपोज दिस वन इज R, ये पोजीशन वेक्टर आप ले सकते हो, ये R ओके। सो व्हाट विल राइट सेम थिंग, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू, और माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ये मिड पॉइंट हुआ OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू A। अभी क्या देख रहा है OP इज इक्वल टू R। Most important is from figure what you are getting from figure, same thing, no problem. AP is equal to R1, BP is equal to R2, OP is equal to यहाँ R. Clear? Now what you are getting? इस चार्ज का चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट A, सपोज V1, वहां R था, यहाँ डिस्टेंस कितना R1, तो यहाँ क्या हो गया चार्ज माइनस है तो माइनस दो, के क्यू बाय AP, तो AP माइनस के क्यू, AP कितना है R1, तो इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर? जो आप बनाए थे ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली कौन बताएगा, एनीबॉडी? वेरी गुड। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू प्लस के क्यू बाय बीपी, तो कितना हुआ
ना प्लस के क्यू बाय R2। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर। नाउ नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, तो V1 कितना हुआ माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1। अगर इसे लिखते हैं तो के क्यू कॉमन लिए, ये कितना हुआ 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। इसको एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हुआ, यहाँ कितना हो गया ना R1 माइनस R2। ओके, ये कितना था के क्यू। इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन 3। अभी हम लोग को क्या करना है, यही मेन इक्वेशन। अभी क्या करना है, R1 R2 कितना है, R1 माइनस R2 कितना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, कैन आई इरेज? ओके, देन come to point. Point is, you just draw to find this value. How can you find this value? From, okay, this is the perpendicular line to this line. Okay, what will happen? From figure it is clear that R1 is greater than R2. But after drawing this one, ये perpendicular हुआ, तो इसका नाम, इसको C दे दो। तो यहां से यहां कितना हो गया ना, ए हो गया R1 माइनस R2। अभी ए बी सी क्या हो गया ना, राइट हैंड ट्रायंगल हो गया। तो राइट हैंड ट्रायंगल यहां जो देख रहे हो, ये कब हुआ, यहाँ 2-3 मेथड है। ओके, वो बहुत इजी मेथड ये है, ये शॉर्ट है, लेकिन यही जो पॉइंट है अभी उसको समझना है। ओके, और जो वो डेरिवेशन है वो आप इसको बढ़ा के ले सकते हो, वो जितना बढ़ाएंगे वहां काट सकते हो, वहां R1 R प्लस ए R माइनस ए करके भी ले सकते हो। लेकिन ये मेथड जो है बहुत सिंपल। ये पॉसिबल कब है ना, इफ द पॉइंट P is very far away from the electric dipole, so ABC acts as a right hand triangle. In ABC right hand triangle, what you are getting? ABC right hand triangle अगर cos थीटा करते हैं तो cos थीटा कितना हुआ, हम लोग करते हैं B by H। ओके, तो यहाँ B by H कौन हुआ, देखो यहाँ, तो यहाँ हो गया ये 2A H हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये P हो गया। सो यहाँ देखो B इज इक्वल टू हाउ मच, B इज इक्वल टू H cos थीटा। क्लियर हुआ। यहां से आप क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 2A, H कितना हुआ, दिस वन R माइनस, क्लियर, सॉरी ये कितना हुआ R माइनस R2 इज इक्वल टू 2A cos थीटा। नहीं समझे, तो ये B बाई H, तो B कितना हो गया R माइनस R2, ये B हुआ, ये H हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 2A। सो R माइनस R2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2A cos थीटा। ओके, नाउ आपको क्या मिला, इस फिगर हिसाब से जब आप परपेंडिकुलर खींच लिए तो R1 प्राय बराबर हो गया R2। सो फ्रॉम फिगर R1 नियरली इक्वल टू R2। सो R1 और R2 कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। दिस वैल्यू यू पुट इन दिस इक्वेशन, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। कम टू पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक तुमको समझ में आ रहा है ना, हाँ वेरी गुड। ओके, कम टू पॉइंट। यहाँ क्या था, ओ हम मिटा दिए, तो यहाँ था V इज इक्वल टू के क्यू R माइनस R2 बाय R1 R2। आई थिंक दिस मच था ना। ओके, तो ये क्या हुआ, के क्यू रखो, R1 माइनस R2 कितना हुआ 2A cos थीटा। ये कितना हुआ R1 R2 R स्क्वायर। ओके, आप इसको लिख सकते हैं। तो के क्यू इंटू 2A cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कितना रहा R स्क्वायर। सो इसको कैसे लिख सकते हैं ना, के P cos थीटा बाय R स्क्वायर। ये भी at any point, at any point, electric potential at any point is this much. Okay, can you write this one, K P R
by r cube. Because p dot r, it is a scalar product dot product p r cos theta. So p r कट जाएगा तो p cos theta हो गया. Okay. So now this is the value you are getting at any point. Clear? At any point, electric potential is this much. Now, what are the special cases? If you give the unit vector, it indicates the unit vector. It indicates r cap is equal to this one. Okay? But don't write, you may confuse. So try to understand this much. Now special cases. What you are getting? Special cases is if the point P, special case 1, special cases. So case 1, if the point P lies on the axial line, तो थीटा हो सकता है एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री. अगर थीटा 0 होता है, cos 0 कितना हुआ? तो 1 हुआ. cos 180 कितना हुआ? तो -1 हुआ. ओके. सो नाउ इफ यू यूज दिस वन, सो v कितना हो जाएगा ना, प्लस माइनस kp by r square. This is the case when theta is equal to 0, 180 degree axial line. Now come to point. If the point P, case 2, if the point P lies on the equatorial line, okay, so theta is equal to 90 degree. So cos theta is equal to cos 90. So that is 0. So v is equal to how much? Kp cos theta by r square. So this portion is 0. So this is how much? 0. That means electric potential is 0 on an equatorial line. Okay. Why? Okay. Can you understand any problem? While you are giving this one right hand triangle, you give this one is theta, and direction of electric dipole moment is minus q2 plus q. Okay. And if you want to give this one value, so you can give this one v is equal to k p r cap by r square in the form of unit vector. If you use the unit vector, so what you will do, you can write this one, because you are giving this one is Poisson vector. This is about electric potential on an axial point, equatorial point, or any general point. Okay. Before going to complete, I want to say, you go to my website. Okay. In the description box of YouTube, you will get a link. I am repeating the same, and you will get the complete notes of every chapter. आपको जितना न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, जितना नोट्स, chapter wise question answer, everything you will get from the website. Okay. And if you have any doubt, you write the comments in comment box. Please, if you like this video, share, subscribe among the friends and relatives. Thank you. Have a nice day.